थैंक्स टू यू। अभी जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप पिछले 1 घंटे 50 मिनट से लगभग हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विषय बहुत कॉम्प्लेक्स भी है और हमारे साथ में बहुत एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं। हम लगभग ये आपको सूचित करना था कि हम लगभग 6:05 पर, लेकिन अगले 10 11 12 मिनट में हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो आप और अगले 12 मिनट तक हमारे साथ जुड़े रहिए, यही सूचना आपको देनी थी। Last but not the least, we have another expert with us, Dr. Divya Gupta ji, who is joining us from Madhya Pradesh, Indore. आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं ज्वाला संस्थान की, और ज्वाला was born as an organization to protect and bring awareness of women rights and to empower distressed women. She's a social activist. She herself is a doctor, and she's been working to uphold the dignity and honor of women through various programs of Jwala. So, Dr. Divya Gupta, with your experience in working with women and at grassroots level, आपको क्या लगता है? Please share your comments on the social stock exchange and its pros and cons. So, thank you so much, Raveen sir, Bala sir, and it's been an enlightening session for me because I seem to be most uneducated kind of a person here with all such glitterati in the social sector here, because Jwala was an organization that came out of passion. So no idea about how the social sector and how all this works. So I'll come to the point straight away. It has been a very enlightening session for me, and thank you for giving me the opportunity to interact. So, sir, 2-3 basic words that came from all this discussion was that initially when the NGO sector was working and looking for donations, we were looking at one word, that was the donor. And now I see the paradigm shift from the word donor has gone into investor. So now there is a basic change. वही एक शब्द ने सारा का सारा सिनेरियो बदल दिया है। हम डोनर की बात कर रहे थे और अब वो इन्वेस्टर हो गया है। यानी कि वो जो एक इन्वेस्टर है वो अब हमसे कुछ रिटर्न में चाहता है किसी एनजीओ से। ये सेबी का एक हमसे एक क्वेश्चन होगा किसी भी एनजीओ से अगर वो पैसा डालेगा तो। यानी ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन पैशन से स्टार्ट हुई थी वो ऑर्गेनाइजेशन को अब आंसर देना पड़ेगा एक हार्टलेस ऑर्गेनाइजेशन को जो सेबी है, जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, जो हमसे इन रिटर्न क्या चाह रहा है उसको हमको आंसर देना पड़ेगा। तो ये एक अपने आप में मुझे भयावह डरावना सा एक सिनेरियो नजर आ रहा है। डोनर जो था वो एक उदार मना, एक अच्छे मन का व्यक्ति था जो उदार मन से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को या किसी एक इंसान को या किसी एक इनिशिएटिव को या किसी एक थॉट प्रोसेस को देने के लिए अपना पैसा देता था। उसको इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए था, उसको इन रिटर्न ये चाहिए था कि शायद इंसानियत का भला हो जाए, शायद कहीं से वो कुछ काम करे और वो अपने आप में सेटिस्फाई हो जाता था। बट नाउ इट इज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड which will come into the NGO sector, which is very nice, which is good, which is very good, which we actually wanted. But will they also corporatize the NGO feeling? The basic ethos of the NGO will probably get, I'll not say diluted, but will get corrupted. तो उस particular thought process को मुझे उसके लिए थोड़ा सा डर है, भय है मेरे अंदर, apprehension है, that apprehension needs to be addressed to. As Finance Minister put it and as Sir has defined it very well, that the intention is amazing, that we should create a stock exchange of, which is the time, which is the call of the hour, that we should create a stock exchange of all the NGOs. Darpan was doing that. Darpan was definitely giving a platform to all that. Now a stock exchange. So we have two different entities probably looking after the same thing but in a different manner.
agreed. The intent is very good, but the methodology needs to be really worked on. That is what we are all working on it today. And इस चीज को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम किसी इंटेंशन को अच्छा करते हैं लेकिन एक्शन सपोर्ट नहीं करता है उसको, तो वो इंटेंशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है. सो इंटेंशन बहुत अच्छी होगी लेकिन मेरा एक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा. मेरे घर में कोई मेहमान आता है, मैं उसको बोलती हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको खाना अच्छा नहीं देती हूँ. सो दैट डजंट मीन दैट मेरी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, पर मैंने अगर खाना अच्छा नहीं खिलाया तो दैट मीन्स मेरा एक्शन अच्छा नहीं था. सो दैट इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. ऑल एनजीओज नीड टू हैव अ सोशल ऑडिट. जो सोशल ऑडिट आप भी हमारे एनजीओज में बिल्कुल भी नहीं है, जो गवर्नमेंट अभी नहीं कर रही है. शायद सेबी के आने से वो सोशल ऑडिट आ जाए, लेकिन अभी नहीं है. लेकिन तकलीफ इस बात की है दैट देयर आर लार्जर एनजीओज, देयर आर एनजीओज व्हिच आर लाइक शार्क्स. वो जो शार्क एनजीओज है वो नॉर्मली सारा का सारा पैसा ले लेते हैं और वो पर्कुलेट नहीं करता है छोटे एनजीओज तक, जिनके पास उतना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं है. जिनके पास ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं है वो छोटे छोटे एनजीओज है. उनकी ऑडिट जो बैलेंस शीट आती है बाय द एंड ऑफ द ईयर, इतनी गरीब सी ऑडिट बैलेंस शीट आती है. उनके पास कोई इन्वेस्टर भी नहीं आता ये बोल के कि भाई तुम्हारी तो ऑलरेडी बहुत गरीब सी ऑडिट रिपोर्ट है, तुमको और कहाँ से हम पैसे दे दें. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते भी हैं तो भी उनको कोई सपोर्ट नहीं है. एंड इट्स अ डॉग कैचिंग इट्स ओन टेल एंड द विशियस सर्कल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. एंड देयरफॉर दीज small NGOs, they suffer only because the larger NGOs, which are the sharks, which take away all the money. I'll have to hurry because I know you're running out of time, Ravi. I totally understand. My last point, but not the least point, is that the smaller NGOs do not have people as smart as all the panelists here, जो उस सारी की सारी चीज को ऑर्गेनाइज कर सके, उसको इतने अच्छे वर्ड्स में, सिस्टमैटिक वर्ड्स में सेबी के सामने या किसी के सामने पुट अप कर सके. इसलिए वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और होते चले जाते हैं. उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? जैसे कि सर ने बोला कि आधे एनजीओस के पास तो वेबसाइट बनाने के भी पैसे नहीं होंगे, वेबसाइट ही नहीं होगी, तो बंदा रखने की तो बहुत दूर की बात है कि उनके पास एक आदमी कैसे होगा कि जो वो इस तरह की बातें पुट अप कर सके. सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी वर्कड ऑन बिफोर वी रियली गो. My one suggestion, I don't know, I'm too large mouth to even suggest it, but we should have an NGO commission now, because NGOs इतना बड़ा सेक्टर हो गया है, तो गवर्नमेंट को एक NGO कमीशन ही बना देना चाहिए जो सिर्फ NGOs के बारे में बात करे, उन्हीं के बारे में देखे. Because finance minister does not have time, one IAS officer sitting there will not have time. We need a battery of a lot of people to look after all the NGOs in one consolidated form. Let's also suggest that you must have an NGO commission now, who only looks after the works of the NGO and of course is answerable to the finance minister and hence should be one intermediary. So as I said, SEBI, heartless organization. NGOs are full of heart, full of passion. They're very passion driven people. So they really don't merge. उसकी मर्जिंग के लिए आप जैसे उसकी मर्जिंग के लिए आप जैसे लोग चाहिए हमको काम करने के लिए. देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस, एक सेतु होना चाहिए. जस्ट फॉर लास्ट रैपिंग अप सेशन, निर्भया फंड क्रिएट करा गया था. निर्भया के बाद बजट आफ्टर बजट 10,000 करोड़ रुपए निर्भया फंड के नाम से दिया गया. आई एम वेरी सॉरी टू से एंड आई अंडरस्टैंड दैट ओनली 1 or 2% of निर्भया फंड budget after budget has been utilized only because there is no clarity कि निर्भया फंड आखिर यूज किस चीज में होना है. इसलिए ऐसा कोई फंड का अनाउंसमेंट हो और क्रिएट हो जिसका कहीं कोई यूटिलाइजेशन ना हो. इसलिए ऐसा कोई और मुझे जरूरत नहीं लगती है कि ऐसी कुछ और चीज हम एक नई पैदा कर दे जिसका हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं हो. सो लेट्स हैव अ वेरी 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 क्लियर व्यू ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल ऑफ सेबी and what exactly is the role of an SSE. Only then we should go ahead and plan it out. So thank you so much everybody for listening me out and I wrap it up. Thank you so much. Thank you Dr. Divya Gupta. आपने बहुत very practical suggestion, very practical